Assalamu alaikum. Today's my topic is physiological and anatomical differences between pediatric and adult patients. I'm Dr. Ira Muslim. I'm PGI anesthesia in CPISC. In airway and respiratory system in children and infants, they have large head, short neck, short mandible, prominent occiput, and relatively large tongue. Children are obligate nasal breathers up to 5 months of age, which facilitates them in feeding. Epiglottis in infants is long, stiff, and omega shaped. It flaps posteriorly. This picture shows the difference between pediatric and adults airway, which shows that the epiglottis is omega shaped and vocal cords are concaved in pediatric age group. Vocal cords are concaved in neonates and slant anteriorly. Larynx is narrowest at cricoid cartilage, whereas in adults it's narrowest at vocal cords. In pediatric age group, minimal edema in trachea can cause obstruction due to its small size. So therefore, we should always check for ETT tube placement, and first sign of esophageal intubation is hypoxia and bradycardia, which can ultimately lead to cardiac arrest. 1 millimeter edema in a pediatric age group can cause 75% decrease in cross-sectional area in trachea, whereas in adults it only causes 44% decrease in cross-sectional area. This picture shows the differences between infant and adult airway differences. In infants, they have narrow nostrils and they are obligate nasal breathers. Occiput is rounded, tongue is relatively large, epiglottis is omega shaped, larynx is higher in neck, vocal cords slant anteriorly, neck is short, cricoid ring is narrowest in diameter. Chest wall in pediatric age group is more compliant. The chest wall has less AP and lateral expansion. Intercostal muscles are weak. Ribs are more horizontal. There is limited expiratory reserve volume, and spontaneous tidal volume in pediatric age group is 6 to 8 ml per kg. Minute ventilation is rate dependent, therefore tidal volume cannot be increased. As tidal volume cannot be increased, so minute ventilation is rate dependent. Functional residual capacity is only 25 to 30 ml per kg. Infants have immature higher respiratory center. To hypoxia, they show a biphasic response. Initially, there is hyperventilation lasting about 30 seconds, which is followed by ventilatory depression. Apneas are common post-operatively, and physiological dead space is only 30% of the tidal volume. Therefore, we should use the least equipment to decrease dead space. Am I clear? जी डॉक्टर इरम ठीक है, कंटिन्यू रखें। Okay, sir. Cardiovascular system, ventricles are less compliant, so they have fixed stroke volume, because of which cardiac output is rate dependent. That's why neonates and infants they show more tachycardia in hypovolemia. Vagal parasympathetic tone is dominant, and sympathetic innervation is incomplete, and adrenaline stores are inadequate, and their baroreceptor reflex is inactive. That's these things they make them prone to bradycardias. In musculoskeletal system, spinal cord has only anterior curvature in newborns, and in newborns, spinal cord ends at L3, in which migrates upwards and
usually ends at L1 or L2 in adults or up to after 10 years of age. In renal system, the GFR is low, which is 20 ml per minute. Kidneys are immature and they may take up to 2 years to get mature. Urine output is 1 to 2 ml per kg, and dehydration is poorly tolerated in this age group, and fluid turnover is approximately 7 times more than that in adults. In infant age group, gluconeogenesis is deficit, hypoglycemia is common, that's why, and they show slower metabolism of barbiturates and opioids. Infants have large body surface area as compared to body weight, and they undergo non-shivering thermogenesis, which requires more oxygen and more energy. Therefore, temperature to prevent heat loss is 32 degrees in neonates, whereas for adult population it's 28 degrees centigrade. My next topic is prematurity and anesthesia. Premature babies are those born before 37 weeks, and there is another classification which is small for gestational age. These babies are basically mature, they are at born at term, but with their body weight is less, according to more less than 10% of the those born at term. Actually, we divide them according to the weight. If the weight is less than 2.5 kg, that is low birth weight. If it's less than 1500 grams or 1.5 kg, that is very low birth weight. Or if it is less than 1 kg, then it is extremely low birth weight. Premature infants have immature organs, which may be due to intrauterine asphyxia. They may have hyaline membrane disease, which causes apneic spells, and they may develop bronchopulmonary dysplasia. They may have patent ductus arteriosus, which causes shunting, and that shunting causes pulmonary edema that can lead to congestive heart failure. And persistent hypoxia in them may cause ischemic gut or necrotizing enterocolitis. Further, if anesthetic considerations in premature babies. First of all, we will evaluate the infant in pre-anesthetic assessment. We should postpone any elective surgery in premature infants up to 50 weeks of post-conception age. And if we are considering any emergency surgery, we should carefully ask the parents about detailed history, including gestational age, weight of the baby, if they are intubated previously or they are still undergoing any mechanical ventilation, if they have any spells of apnea, if they have any other comorbidities, or if they ever had any previous surgery or taking any medications. Then we should carefully assess their airway, and if they are intubated, we should check the size of the ETT2 tube, and we should arrange cross match and blood or blood products if anticipated blood loss is 10% of the body weight. We should always go for echocardiogram to see any of the underlying cardiac disease or any congenital heart conditions. And third, also we should minimize NPORs in premature infants to decrease hypoglycemia and to prevent dehydration. In intraoperative management in premature infants, we should ideally have a room temperature of 32 degrees centigrade. We should have warming devices available with us. We should have a wide range of uncuffed ETT, including different sizes of uncuffed ETT tube. We should have all the basic monitoring with us, including 2 pulse oximeter as recommended.
especially for if the patient is having PDA. In one probe is placed on right hand for preductal saturation, and the other is placed on lower limb for the postductal saturation. If the patient is already ventilated and has prolonged ventilation, we can anticipate difficult airway because there may be any subglottic stenosis. In premature infants, inhalational induction is preferred, especially with desflurane, because neo studies suggest that premature infants they wake faster in recovery when they are inducted with desflurane as compared to sevoflurane. We should avoid high oxygen uh, uh, in premature infants. Normal PO2 in this age group is 60 to 80 millimeter of mercury. For intraoperative fluid management, we should go for 100 ml per kg in 24 hours, and the fluid should be ideally isotonic and contain glucose containing to prevent hypoglycemia. We should go for multimodal analgesia that can include local anesthesia along with paracetamol or along with fentanyl or any other opioid. In post-op care, we should carefully evaluate that can the premature infant be extubated or not, as if the baby is uh, producing adequate tidal volume and is ideal for extubation, then we should go for extubation. Otherwise, the premature infant should remain intubated. As apneas are very common in first 12 hours post-operatively, up to 24 hours apneas can be observed. So if the patient is intubated or has any apneic spell, we should go for HD or ICU care at least 12 hours after any of the apneic episode. Thank you. थैंक यू डॉक्टर इनम, गुड प्रेजेंटेशन। अभी किसी का क्वेश्चन हो या इसमें कुछ ऐड करना चाहें? इमरान, कोई बनाया हुआ केस डिस्कशन? जी सर, मैंने क्वेश्चन सर ग्रुप में डाल दिए थे, आज के इसके लिहाज से तो नहीं बनाए थे मैंने, क्लासरूम में मैंने डाले हैं वैसे। चलो वो इधर ही शेयर कर लो, डिस्कस हो जाएंगे। ये है ऐसी क्यों है सर? दोनों है, मैं वो भेजता हूँ सर। चले उसको कर लेना शेयर, उस पर डिस्कशन हो जाएगी। वैसे अटेम्प्ट तो कर दिए हैं काफी लोगों ने, नहीं अभी किसी ने नहीं किया। जी जहांगीर, ये जहांगीर ने कुछ चीजें शेयर की हैं ग्रुप पे, इस पे ऐड कर दो जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, ये जो आपने शेयर किया ना ग्रुप पे, वो थोड़ा जी अलग सर। कर दो। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी डॉक्टर इरम ने। परसों मैं एक सिंपोजियम देख रहा था, ऑनलाइन सिंपोजियम था, पीडियाट्रिक पेन मैनेजमेंट। हाँ जी। उसमें पहले वो डिफरेंसेस बताए हैं अडल्ट और पेड्स में, और डॉक्टर इरम ने तो बड़ी डिटेल में बताया। ये कुछ स्लाइड्स थी, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुआ, तो मैंने कहा शेयर कर दूंगा, तो ये तो सारे लोग पढ़ लेंगे। सही है। बाकी वही है, एनाटॉमी का जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, उन्होंने अपने तौर पे क्लासिफिकेशन को दी हुई थी। फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, फार्माकोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि बच्चों में ना साइकोलॉजिकली बच्चे अडल्ट से डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट बिहेव करते हैं, नीडल फोबिक होते हैं पे,
और स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है बच्चों में। तो ये था एक पॉइंट जो मेरे ख्याल में डॉक्टर इरम मिस कर गई हैं। तो बाकी तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत जबरदस्त बताया। और जो फ्लूइड ऑफ चॉइस, इसमें बच्चों में सोडियम लोड, सोडियम हमने कम देना है। सोडियम, जी सर। जी ठीक है। जी सर ठीक है, बाकी अच्छा है। आप कुछ ऐड कर दें सर। जी ये इमरान आप शेयर करके दिखा दो। जी सर, वो मैंने सर भेज दिया है सर उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। अच्छा, उसको मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर दूं। जी सर। ये नहीं, ये एलेबोरेट कर दो इमरान। सर इस पे जो एक चीज मैंने इस पे मतलब क्लिनिकली डालने की कोशिश की थी, वो ये है कि हम एयरवेज की कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे डाउन सिंड्रोम और पेयर रोमन सिंड्रोम के अंदर आ सकती हैं, वो एनाटॉमिकल और जो हमारी फीचर्स हैं उससे हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं सर। दूसरा, जैसे डॉक्टर इरम ने हमें बताया है कि सीवीएस और रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये तो आज के लेक्चर के बाद इनको आ जाना चाहिए। तो मेन जो है दूसरा जो मैंने नीचे क्वेश्चन डाला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सारी मैंने डाली हुई है, इसमें से हमने ट्रू फॉल्स करने हैं। तो आई थिंक सर हमें ये वाला डिस्कस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन जो एसक्यूज में क्वेश्चन 2 है और नीचे वाले ट्रू फॉल्स जो है सर। तो ट्रू फॉल्स के लिहाज से सर हम डिस्कस कर लेते हैं सर। अब इस पे सबकी कोऑपरेशन चाहिए होगी। अब मैं इनको पढ़ दूं तो फायदा कोई नहीं है। हाँ नहीं आप पूछें तो, क्वेश्चन, बाकी सबसे जवाब जी सर। तो इस पे अगर हम अपने ट्रू फॉल्स में पहला देखें तो वेट, तो क्या ये ठीक लिखा हुआ है कि बर्थ के ऊपर 3 to 4 kg वेट होता है बच्चे का? ट्रू सब में? ये तो सर बेबी बोलना शुरू हो गया है, वो कह रहे बिल्कुल ठीक है। वो खुद ही बता रहे हैं। सर ट्रू है सर, 2.5 प्लस केजी वेट जो है वो नॉर्मल होता है, 2.5 से 4 केजी तक। ओके गुड हो गया। तो उसके बाद जो है 9 years तक और फ्रॉम 9 years का जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये कोई बताएगा कि क्या ये ठीक लिखा हुआ है या गलत है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इसलिए डाली है, मैंने कहा हमें आनी चाहिए। ये बीच में मिस नहीं हो गया, 1 year पे 10 kg होता है। जी सर। ये ट्रू है फॉल्स है? नंबर 2 पे 1 year पे क्या 10 kg होता है? 2 years पे 12 kg होता है। और 1 पे 2 पे 12 होगा तो 1 पे 1 पे कम ही होगा मेरे ख्याल से, 8-9 kg होता है 1 year पे। तो आप मतलब ये फॉल्स है, राइट? फॉल्स, फॉल्स है। ओके नंबर 3 तो पे फर्स्ट 5 मंथ्स में जो बर्थ पे वेट होता है वो फर्स्ट 5 मंथ्स में तकरीबन डबल हो जाता है। तो उस हिसाब से तो अगर 3 केजी वेट होगा 5 मंथ्स पे 6 हो जाएगा, तो 1 ईयर में 10 केजी पॉसिबल है सर। वो तो हो इसका सकता है, आंसर लेकिन ठीक है सर, हाँ बिल्कुल ये वो तो 10 kg है 12 सर 1 year 15 का। kg भी हो सकता है। नहीं, वो इसकी रीजन ये है कि वो जैसे बेबी बड़ा होता है उसका वाटर कंटेंट कम होता जाता है, इसकी वजह से वेट कम हो जाता है जब बेबी हाँ जैसे बड़ा जी होता है। जी। तो पॉइंट 3 पे जो है एज का फार्मूला जो है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स के अंदर, इसको हम कैसे कर सकते हैं? वेट को अप टू 9 years है तो एज इंटू 2 प्लस 9। जी। अब अगर कितना निकलेगा इसका हमारा वेट? अगर 7 क्या कहते हैं 7 year का बेबी है तो 7 year का बेबी का कितना वेट निकलेगा पॉइंट 3 में?
हेलो, क्वेश्चन समझ आया आपको? जी, कोई इस पे करे रिप्लाई? जी ये देखें ना, अब ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला दिया हुआ है, 7 into 2 हो जाएगा 14 + 9, तो ये 23 होना चाहिए। और जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है बिल्कुल 23 है, और नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है अगर 11 इयर्स होगा तो 33 kg होना चाहिए, क्योंकि ये रफ एस्टिमेट होते हैं। मोस्टली पीड्स के अंदर हमारे जब भी बच्चे आते हैं उनका वेट नहीं हुआ होता इमरजेंसी के अंदर, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी ईटीटी और कौन सी कितनी ड्रग्स बनानी चाहिए। तो हम ये वाले फार्मूले में याद करने चाहिए कि जब 9 से ऊपर 11, 12, 13 तक होगा तो फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर लेस देन 9 है तो ये फार्मूला था एज इंटू 2 + 3, और 1 ईयर का ऑलमोस्ट 10 kg होना चाहिए, बर्थ पे 3 to 4 kg होना चाहिए। तो प्री टर्म के लिए ईटीटी साइज कितना होना चाहिए? तो आवाज आना बंद हो गया। 2.5 सही है तो। ये 2.5 ठीक है। कहीं से आंसर देखे हुए हैं या वैसे ही ये इतना पढ़ लिया आपने भाई? पता नहीं। नहीं नहीं सर, ये पढ़ा था कहीं पे, इसीलिए ओके याद है पुराना। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो टर्म के ऊपर जो है क्या साइज होना चाहिए ईटीटी का? देखिए ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, इवन के जब सीनियर तब भी जब पूछते हैं कितनी ईटीटी होनी चाहिए हम चुप कर खड़े होते हैं, तो ओटीज हमें बता रहे होते हैं तो फिर हम वो ट्यूब डाल देते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है। हम ये वाला करते हैं ना, एज डिवाइडेड बाय 4 + 4 वाला फॉर्मूला। आई थिंक मुझे नाम लेने चाहिए। अब्दुल हमीद साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी डॉक्टर जहांगीर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? टर्म के ऊपर ईटीटी साइज क्या होता है? जो फुल टर्म है उसके लिए तो हम 2.5 to 3 लेते हैं। ओके, प्री टर्म के लिए 2.5 था, टर्म के लिए 3 to 3.5 सेंटीमीटर है। हाँ और आगे जो लिखा हुआ वो फिक्स करेंगे 9 सेंटीमीटर, आप लिप्स के ऊपर कर देंगे। चेंज हो गया। अच्छा, वो कह रहा है डायमीटर कैसे लेंगे, ये फार्मूला हमें आना चाहिए। ये अक्सर हम ये इसी फार्मूले से कर रहे होते हैं। अब अगर हमारे पास एज 9 इयर्स है तो क्या डायमीटर आएगा ईटीटी का? डॉक्टर हसीब, अगर 9 इयर्स है तो हमारे पास ईटीटी क्या डायमीटर आएगा, साइज आएगा? ये वही बात तो नहीं डिपार्टमेंट में हो रही थी कि बस ग्रुप ज्वाइन किया और फिर जाके सो गए? डॉक्टर हसीब, आवाज आ रही है 6.25 आपको? बन रहा है। 6 नहीं, तो ज्यादा बनता है। सेंटीमीटर सर, 6.25 बन रहा है। और लेंथ कितनी होगी? फिक्स कितने पे करेंगे इसको? अब इसको उनका 9 डिवाइडेड बाय 2 + 12। 4.5 + 12 तो 16.5 सेंटीमीटर लेंथ होगी, और 6 सेंटीमीटर 6.25 डायमीटर। जाहिर है 6.2 वाला डायमीटर तो नहीं मिलेगा ना, 6 होगा या 6.5 या होगा। 6.5 होगा। हम कम ही करते हैं, हम कम वाला ही लेते हैं, मतलब उसको रिड्यूस ही कर लेते हैं। अब ये ड्रग्स हैं, ये आप देखते जाएं कि अच्छा, किस लिहाज से इसमें डॉक्टर इमरान, मैं एक बात ऐड कर दूं। जो लेंथ होती है ना सर मोस्टली, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये भी है कि जितनी साइज की आपने ट्यूब डाली है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी, स्मूथ कर जी सर, देंगे। वो सर अडल्ट में मोस्टली वैसे एप्लीकेबल होता है। वैसे आई डोंट नो, मतलब पीड्स में भी हो जाता है। अगर आपने ओके सर। नंबर 4 की ट्यूब डाली है तो उसको 12 पे फिक्स कर दें। जी सर, वैसे इस फार्मूले से वैसे इतना निकल रहा है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। तो प्रोपोफॉल अब इन्होंने 4 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से क्यों दी हुई है? ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है सर। 3 to 6 होती है फीड्स में, 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, इसलिए। बॉडी सरफेस एरिया नहीं लेकिन ज्यादा चलो होती है, ठीक है, अडल्ट से ज्यादा बट होती है। ठीक है ना, एग्जामिनर में तो ये कहता हूँ, कहता नहीं। इसलिए ज्यादा होती है। प्रोपोफॉल की डोज पीस में ज्यादा होती है, 3 to 6 mg पर केजी। जी सर, इस पर भी आप क्या कमेंट करेंगे सर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर इस बारे में।
पहले तो ये प्रोपोफॉल देते भी हैं या केटामीन देते हैं, क्या करते हैं सर? नहीं देते हैं प्रोपोफॉल। जी इस्लाम साहब इस बारे में कमेंट करेंगे? वो तो चले गए हैं, बैठे हैं सर। प्रोपोफॉल का ये है कि लेस देन 1 मंथ में शायद रिकमेंडेड नहीं है एज में ना, वही जो लेकिन कुछ स्टडीज प्रोपोफॉल कहते हैं कि सिंड्रोम इसमें तो भी आप बच्चों में दे होता है ना, सकते हैं। किसमें होता है हाँ प्रोपोफॉल जी, सिंड्रोम? वो जेरियाट्रिक पेशेंट होता है उनमें होता है, राइट? तो है लेस देन डॉक्टर 1 साहब? मंथ में तो रिकमेंडेड नहीं है। और वो वैसे भी इन्फ्यूजन के अंदर होता है। जी सर आगे। अच्छा तो आपने बताया कि 4 to 6 होता है, तो ये 4 मिलीग्राम यहाँ पे। और केटामीन कितनी डोज देते होते हैं भाई? सबको केटामीन की बोलना चाहिए, ये ठीक बड़ी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2 मिलीग्राम पर केजी है केटामीन की फीड्स में। ओके सक्सामिथोनियम 2 मिलीग्राम क्यों लिखा हुआ है? 1.5 है शायद। हाँ ये 1.5 भी है, ये ट्रू है, फाल्स हो गया। सक्स भी ट्रू है, एट्राक्यूरियम नहीं ये सक्स का 2 ये भी करते हैं ट्रू। 1.5 तक मैक्सिमम, नहीं 1 to 1.5। हाँ तो ये फाल्स हुआ। हाँ ये फॉल्स है, 2 तो नहीं है। एट्राक्यूरियम का ठीक है 0.5 to 1 भी कर लेते हैं। डॉक्टर इमरान, इसमें केटामीन का ना आपने वो बनाना था कि आईवी ठीक है, कितनी एनाल्जेसिक डोज, तो ये नहीं आपके ऊपर अलग लिखा हुआ अलग है से ना, इंडक्शन इंडक्शन लिखी हुई डोज, है, ऊपर लिखी हुई है। इंडक्शन इंडक्शन लिखा हुआ है सर ने, इंडक्शन डोज लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ना, सिंगल एजेंट अनप्रीमेडिकेटेड इलेक्टिव पेशेंट है ये। अनप्रीमेडिकेटेड, ठीक है। तो जो अच्छा आईवी इसका है मतलब क्या हुआ अनप्रीमेडिकेटेड? एक मिनट जहांगीर किसी जूनियर से पूछते हैं क्या मतलब, वो इस बात का क्या मतलब है? इमरजेंसी पेशेंट है, अनप्रीमेडिकेटेड है। अनप्रीडिक्टेड में जो इमरजेंसी होता है। अच्छा हाँ और पहले प्रिपेयर नहीं किया हुआ आपने, उसका प्री ऑप नहीं किया हुआ पहले, उसको अच्छा एनपीओ प्रॉपर नहीं किया हुआ, उसको प्री मेडिकेशन नहीं ओके दी हुई वेरी गुड। बिफोर और द इसके अलावा क्या सर्जरी। रीजन है इसकी? ये बात भी नहीं, क्या रीजन है? क्योंकि वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स आते हैं ना अगर आपने उनको प्री हाँ मेडिकेट किया हुआ है, तो हाँ फिर ये बात डोजेस भी है, रिड्यूस हो ठीक है जाती वेरी हैं। गुड। तो फिर आप इन हाँ डोजेस से नहीं देंगे, आप कम डोज से हाँ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, इसमें केटामीन है, केटामीन की आईवी डोज अप टू 4 मिलीग्राम है आईवी, और आईवी दे उसका सकते हैं डबल है आईएम। आईएम के अंदर। आ रहा हूँ तो नेक्स्ट बोलते रहो यार जहांगीर, सबको यही हाल होता है, पीछे बोलते रहते हैं। एट्राक्यूरियम की ठीक है डॉक्टर इमरान, 0.5 mg पर केजी ट्रू है ये। अच्छा, इमरान के साथ डिस्कनेक्ट हो गया तो इसको कंटिन्यू कर लें और खत्म कर लें। जी सर। एट्रोपिन ठीक लिखी हुई है, ठीक है 0.1 mg पर केजी होती है आई थिंक सो। 0.01 0.01 to 0.02 हाँ 10 जी to 20 ठीक है, माइक्रोग्राम। सही लिखी ठीक हुई है। है। सही है, मॉर्फिन, सही है मॉर्फिन सर, 0.1, ठीक है मॉर्फिन भी ठीक 0.1 लिखी mg हुई है, पर केजी। ठीक है 0.1 होती है। मॉर्फिन और किन्स की आई थिंक सेम ही डोज है। जी सर, फेंटानिल, फेंटानिल भी ठीक है, 1 to 3 फेंटानिल माइक्रोग्राम की पर जो मेरे जहन में शायद वो इससे ज्यादा है। 1 1 to 5 माइक्रोग्राम्स पर केजी है। 5 है, 5 माइक्रोग्राम तक है मैक्सिमम। ये अतलान, ये फेंटानिल तो मेरे ख्याल 5 से अबव है, और बच्चों में जी सर, मैं 10 तक भी दे सकते हैं। हाँ, ये 3 to 5 5 to 10 है आई थिंक। 5 से अबव होती है बच्चों में। बीटा लैक्टम सर ये 10 mg पर केजी के हिसाब से नहीं देते हम? 10 to 15 है।
लेकिन बच्चों में देख लिया मेरे को ज़्यादा भी देते हैं 20 सर to- आज ही हमने वो डिस्कस किया था डॉक्टर तारिक से, तो वो 10 mg उन्होंने कही थी अच्छा बीटा लैक्टम्स में जो आती हैं। सर सही 10 to 15 फिर वो 20 भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और मेट्रोनिडाजोल तो ठीक लिखी हुई है आई थिंक। 15 वो 15 मिलीग्राम है। ठीक है। नियोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन की होती है 0.05 हम्म मिलीग्राम। 0.05 mg per kg। 50 माइक्रोन ही हो गया ना। जी सर। एट्रोपिन हम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बच्चों में Why करते we हैं जब prefer हम atropine? Why we prefer neostigmine instead of atropine? क्या इसका एक टिपिकल साइड इफेक्ट है? व्हाई वी प्रेफर तो ये ब्लड नियोस्टिग्मीन। ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, एट्रोपिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि जो पीड्स के बच्चे हैं वो ब्रेडी में नहीं जाते, इसलिए हाँ अक्सर एट्रोपिन तो इंडक्शन में भी हम दे देते हैं। तो रिवर्सल सब के सही लिए रहते हैं। ये रिवर्सल तो में क्या कह रहे थे आप? नहीं ये ग्लाइकोपाइरुलेट का आप बता दो ना, नियोस्टिग्मीन तो वो आप तो अलग वो कर रहे हैं ब्लड ब्रेन ना, बैरियर क्रॉस करेगा। एट्रोपिन को ग्लाइकोपाइरुलेट के साथ कंपेयर करें ना। बिल्कुल सही या कह रहे हैं आप। एट्रोपिन होगा या ग्लाइकोपाइरुलेट होगा, हम हाँ वो इनके साथ कंपेयर एंटीकोलिनर्जिक करें। इनके इफेक्ट्स, अच्छा मस्करीनिक इफेक्ट्स के लिए मेरे ख्याल से देते हैं उसको। तो सिक्रीशन। ये करता है नियोस्टिग्मीन जो करता है, ये तो एक सेलिब्रेशन करता है, दूसरा ये ब्रेडिकार्डिया करता है। तो आप जो ना उस इफेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें देते हैं, आपके पास या तो प्रिपेयर्ड आती है या तो फिर आप या उसके साथ हाँ ऐड करके दे देते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं नियोस्टिग्मीन और एट्रोपिन के कॉम्बिनेशन में कोई मसला होता है? सर वैसे तो कॉम्बिनेशन लोग यूज करते हैं एज सच, एट्रोपिन के नियोस्टिग्मीन के कॉम्बिनेशन में सर मसला होता है, क्योंकि ये कभी भी कॉम्बिनेशन में एट्रोपिन के साथ नहीं आया, ये हमेशा ग्लाइकोपाइरुलेट के साथ ही कॉम्बिनेशन में आता है। क्यों? ये मेरे ख्याल में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इसका असर हो जाता है थोड़ा सा, ये एट्रोपिन वो करता है उसके साथ, या तो ये नियोस्टिग्मीन ब्लड एट्रोपिन ब्रेन को बैरियर मिमिक क्रॉस करता है, उसकी वजह से ये डिलीरियम या इस किस्म का कोई भी नहीं नहीं, इन चीज दोनों का कॉज आपस कर। में कोई लिंक है सर, नियोस्टिग्मीन का एट्रोपिन का, या तो सिनर्जिस्टिक वो है, या तो ये कोई एक इन्हें इनहेंस करता है, कोई एक चीज को पोटेंशिएट करता है, इसकी कोई साइड इफेक्ट को सर। अच्छा असल में इसमें प्रॉब्लम ये होता है इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में वो मिसमैच हो जाता जी है सर। कि अगर कॉम्बिनेशन में दें तो एट्रोपिन का इफेक्ट जो है वो वेयर ऑफ हो जाता है ज्यादा देर तक रहता है। अर्ली, अच्छा नियोस्टिग्मीन जल्दी हो जाता प्रोग्राम रहता है इस वजह से नियोस्टिग्मीन के जो एडवांस करना है, क्योंकि हम इसको यूज ही इसलिए करते हैं कि नियोस्टिग्मीन के जो एडवर्स इफेक्ट है उसको रोक सके, तो अब इसका इफेक्ट तो वेयर ऑफ हो जाता है। तो सही। ये जो है ना कोई आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ इसका दूसरा तरीका कि अगर आपने इसको यूज करना भी है तो पहले नियोस्टिग्मीन दें, उसके तकरीबन जी एक सर। डेढ़ मिनट के बाद जो है ना आप इसको एट्रोपिन दें, ताकि उसके जब इफेक्ट शुरू हों तो इसका भी ऑनसेट शुरू हो जाए। तो सही। ये इसका तरीका होता है। बस अदरवाइज ठीक। है ना वो ग्लाइकोपैरोलेट के साथ इसीलिए यूज होता है कि उन दोनों के प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर लेते हैं। जी सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जो एट्रोपिन है वो टर्शरी अमाइन है और जो ग्लाइकोपाइरुलेट है वो क्वार्टरनरी अमाइन है, तो मेटाबॉलिज्म उसका एट्रोपिन का फास्ट है, उस जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है, तो शॉर्ट एक्टिंग है इसलिए। एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन किसके साथ मैच करेगा, ये जो रिवर्सल एजेंट है उनमें से? नियोस्टिग्मीन के साथ है, प्राइडोसिट उसके साथ है, प्राइडो के साथ। प्राइडो भी प्रोलॉन्ग है। पैसो फैसो के साथ नहीं, उसका भी इफेक्ट ज्यादा लंबा है। एड्रोफोनियम ये एट्रोफोनिक और इसके दोनों का तकरीबन ऑलमोस्ट मैच कर रहा होता है। अच्छा जी सर मैंने ग्रुप में सर, आवाज आ रही है, ग्रुप में सर पिक्चर सेंड किए हैं पेयर ओपन की और डाउन सिंड्रोम की, सर उनको देखें फिर हम इनकी जो है ना कॉम्प्लिकेशन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर।
आवाज आ रही सर? यस सर। अच्छा, आप देखी हैं तस्वीरें आप लोगों ने? अच्छा, इसमें अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिफिकल्टीज क्यों होती हैं। उसकी वजह यह है कि तस्वीर देखें तो आपको आइडिया होता जाएगा। इनका एटलेंटो ओसिपिटल इंस्टेबिलिटी होती है, पहली बात तो ये है डाउन सिंड्रोम के अंदर। दूसरा ये कि ये जॉइंट ही इंस्टेबल होगा। सर आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है, आप अच्छा, करें कंटिन्यू। नंबर 2 पे इसका जो है ना, इनकी टंग बड़ी होगी, मैक्रोग्लासिया होगा, और इनकी ओरल कैविटी स्मॉल होती है, वो पोर होती है, जिसकी वजह से इनकी अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि साथ पेयर रोबन सीक्वेंस के अंदर उसमें क्या होते हैं, इनकी भी टंग बड़ी होती है, इनके अंदर भी क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। तो ये वजूहत जो है ना, इनकी जो है ये डिफिकल्टीज इनकी जो है ना एयरवे में मसले मसाइल हमारे हो सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि क्या क्या मसले इनके मसाइल हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था कि कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरवे कॉम्प्लिकेशन डाउन सिंड्रोम विद पेयर रोबन, तो ये फर्क है इन दोनों के दरमियान में। जी सर। जी ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। बाकी सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर जो कह रहे हैं वो वाले दोनों ऊपर नीचे वाले फिजियोलॉजी वाले। हाँ जी, कंप्लीट हो गए ना? जी सर, वो तो क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए थे सर। इसके अंदर क्या कहते हैं उनको, डॉक्टर इरम ने अपने उसके अंदर हाँ बता दिया था। ये चीज थी, हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया सर इसके अंदर। ठीक हो गया। चलें, अभी कोई ये अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात शेयर करना चाहे? अगर कहते हैं तो फिर डिस्कस कर लेते हैं सर। हाँ जी, अभी हैं हमारे पास 10-15 मिनट हैं। कोई चीज़ ऐड करना चाहे, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करना चाहे? वैसे तो टॉपिक आगे का है। कल वैसे ना वहाँ पे एक डिस्क पे पेशेंट है साउथ पंजाब में, हाइटस हर्निया का। ओके सर। तो उसके क्या कंसर्न होंगे? वैसे तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आज के टॉपिक में तो नहीं। आज मैंने एक कराया बच्चा ना, 2 साल एज थी उसकी, PCNL, परकुटेनियस एक्स्ट्रा कार्पोरियल नेफ्रोलिथोटमी। जी सर। तो ये मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पहले अडल्ट में तो करवाए थे काफ़ी, लेकिन वो बच्चों में नहीं करवाया था, ये फर्स्ट टाइम किया। अब उसमें जो मुझे डिफरेंस लगा ना बच्चों में और इसमें, अडल्ट में जो रिब है, जो आपकी लास्ट रिब है, वो ज़्यादा मुझे कभी नहीं कहा सर्जन ने कि आप जो है वो वल्सल्वा करें ताकि थोड़ा सा किडनी नीचे जो है वो डिस्प्लेस होके आ जाए और मैं अपनी नीडल वहाँ प्लेस कर लूँ। लेकिन इसके लिए उन्होंने मुझे बार बार कहा जी कि हमें जो है ना आप एक अपनिया दें और दूसरा जो है ना वल्सल्वा करें ताकि नीचे डिस्प्लेस हो जाए मैं और वहाँ पे अपनी नीडल प्लेस कर लूँ। तो ये भी एक एनाटॉमिकल डिफरेंस की वजह से ही है कि किडनी ऑलमोस्ट जो है वो रिब के पोस्टीरियरली आते हैं, तो उनको स्पेस नहीं मिलती। ओके सर। ये करवाया PCNL कभी? किसी का एक्सपीरियंस हो? अडल्ट्स में करवाया सर, बच्चों में नहीं करवाया, अडल्ट्स में करवाया। हाँ, अडल्ट में करवाया। हाँ, तो वो कभी आपको पहले सर्जन ने कभी कहा है कि वल्सल्वा करें ताकि किडनी थोड़ा नीचे आए? नहीं, वल्सल्वा नहीं कहा, एपनिया का कहते हैं, एपनिया का कहते हैं। हाँ, वो अपनिया का अगर कोई नया वो जब सर्जन हो नीडल ना, डालते हैं ना, हाँ एपनिया का कहते हैं उस वक्त, हाँ जी, वो प्लेura से बचने के लिए। नया सर्जन हो तो उसके थोड़े रिफ्लेक्सेस का इशू होता है, तो वो मूवमेंट जो डायफ्राम की है ना उसे प्रॉब्लम करती है, तो वो हाँ जी। अपनिया का कहते हैं। पर मेरे पास जो सर्जन करते हैं उन्होंने कभी नहीं कहा अपनिया का, वो उनके रिफ्लेक्सेस थोड़े अच्छे हैं।
तो लेकिन वलसलवा का आज इसने कहा कि वो वलसलवा करके थे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ सही चैट में क्वेश्चन आए हुए हैं तो जी जी एक पहले भी आया हुआ था कि आईजेल और सुप्राग्लॉटिक एयरवेज हमने यूज करते हैं हम लोग या नहीं करते न्यूनेट्स में। तो इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि किया जा सकता है, किए भी हैं हमने। स्मॉल साइज की जो आईजेल होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं स्मॉल केसेस में। बिल्कुल किए जा सकते हैं। अच्छा सर, इसमें एक सिंपल सा जो हम रूटीन में करते हैं, मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा कि हमने अगर फ्लूइड बोलस में देना हो तो कितने मील्स पर केजी देंगे, और मेंटेनेंस जो हम करते हैं वो कितना, और अगर डेली रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट करनी हो तो फर्स्ट 10 केजी की, और तो ये किस तरह से करेंगे, कोई बताएगा इस बारे में? अगर 10 केजी का पेशेंट है, उसको फ्लूइड बोलस देना हो तो कितना देंगे, उस कितने ml के लिहाज से देंगे? जी सोल्यूशन की तो बात हमारी हो गई थी हाँ। कि कौन सा देना है हमने, 0.9% सोडियम क्लोराइड या हार्टमैन सोल्यूशन। बोलस कितना देंगे, और मेंटेनेंस का चलो फार्मूला मैं बता देता हूँ, वो हम 4:1 के लिहाज से देते हैं। चलो दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, बोलस की और डेली रिक्वायरमेंट की। जी को बताएगा कि बोलस कितने ml के लिहाज से दिया जाता है? जी डॉक्टर आपके सर बोलस तो पता नहीं, लेकिन जो 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यूज होती थी, वो सर ऐसा होता था कि फर्स्ट 10 के लिए 10 ml पर केजी होता था, और सेकंड जी वो 10 के फर्स्ट 10 लिए के लिए, हाँ जी जी वो जो फर्स्ट, अब ये 10 केजी का बच्चा आप कह रहे हो तो 10 ml पर केजी, तो 10 into 10, तो सर वो जो उसकी टोटल फिर रिक्वायरमेंट होती है, उसको फिर वो डिवाइड करते थे ऑर्स में, यानी कि टीडीएस में उसको डिवाइड कर देते थे। तो तो 10 का है तो 100 ml हो जाएगा, आप ये कह रही है? जी सर, तो अगर 10 केजी का बच्चा होगा तो वो फिर और अगर 100 ml। 16 केजी का हो जाएगा तो कोई बताएगा 16 केजी को हम कितना डेली रिक्वायरमेंट देंगे? तो सर जो नेक्स्ट 6 है ना, उसके लिए 5 ml पर केजी कर देते हैं वो, फिर उसको ऐड करके और ऑर्स पे डिवाइड करते हैं। और अगर ये 23 हो जाता फिर 20 ml के लिहाज से हैं, उसमें कितने फिर ml से देते आपने हैं? उसके बाद 1 ml पर केजी हो जाता है। 1 ml पर फर्स्ट केजी के 10 लिहाज में से हो जाएगा। 10 ml पर केजी, सेकंड 10 में 5 ml पर केजी, और आगे फिर 1 करके, तो उसको फिर सर जितने ऑर्स के लिए हमने करना हो उस पे डिवाइड करते हैं। ये या कोई कमेंट हो करेगा इस सकता है पे? ठीक कह रही है ये बिल्कुल? जी पीड्स डॉक्टर में जहांगीर। 4:1 का फार्मूला वो करते हैं अगर वेट लेस देन 20 केजी है तो। सर अगर मैंने वेट बताया था कि एक क्वेश्चन था फॉर बोलस फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर डेली रिक्वायरमेंट, आप ये कह रहे हैं कि डेली रिक्वायरमेंट भी हम 4:1 से कैलकुलेट करते हैं, ये कह रहे हैं आप? जो बोलस है, बोलस हमने देखना ये है कि किस पर्पस के लिए हम दे रहे हैं, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन कितनी है, गुड हो गया। तो कैलकुलेशन उसके मुताबिक हम करेंगे। ये वैसे है इमरजेंसी अपेंडिक्टोमी करा रहे हैं, and he has been vomiting and unable to tolerate all fluids for the last 1 day, और temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस है। 30 ml पर केजी तक बोलस दे सकते हैं अगर मॉडरेट होगी तो, और 10 ml का करके ना बोलसेस देंगे। 10 ml पर केजी का बोलस देंगे, फिर उसके बाद 10 ml पर केजी, फिर 10 ml पर केजी, 30 ml पर केजी तक आप बोलस दे सकते हैं। तो दूसरा ये है कि जो मेंटेनेंस का तो 4:1 वाला फार्मूला है। हाँ जी अगर वेट 20 केजी से ज्यादा है तो वेट प्लस 40 कर दें तो वही 4:1 वाली कैलकुलेशन आती है। बिल्कुल ऐसा ही है मेंटेनेंस के लिहाज से। और जो डेफिसिट है, जैसे रात को 2 बजे पेशेंट को एनपीओ करवा दिया है, तो सुबह 8 बजे प्लान किया है, तो फिर जितने एनपीओ आवर्स हैं 4:1 करके 1 घंटे का फ्लूइड निकाल के एनपीओ आवर से मल्टीप्लाई करें, उसका 50% पहले घंटे में देना है प्लस उस घंटे का फ्लूइड। जी सर, ये तो डेफिसिट हो गया, मेंटेनेंस हो गया। जी सर, आप इस पे कमेंट करेंगे, सर फाइनल करें फिर इंशाल्लाह
तो ये तो इसको इंट्रा ऑपरेटिव हो गया। ये 4 to 1 से जी आप जी मेंटेनेंस कैसे निकालते हैं, जरा मुझे थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा। जैसे हम अब पेशेंट को सर्जरी के बाद एएसडी या बीएसडी इनको भेजते होते हैं, तो हमने पीछे लिखना होता है कि पर और हमें इसको कितना फ्लूइड देना है। तो उसके लिए 4 to 1 वाला फॉर्मूला आप कैसे यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा जरा इसको एक्सप्लेन अगर कोई करते हैं। अगर 23 kg का वेट 23 kg वेट है, वीएसडी का ऑपरेट हुआ, ये पूछ रही हैं? जी सर, इसको आप आईसीयू में भेज रहे हैं, आपने मेंटेनेंस चलानी है 24 आवर्स के लिए, तो पर और हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, ये तो डिफरेंट क्वेश्चन था। टोटल डेली रिक्वायरमेंट 24 आवर की हो जाएगी। जी सर, अरसलान इसे फाइनल कमेंट करें, फिर सर बंद करें। सर के टाइम हो रहा है। जी ठीक है, बाकी जो आगे हम केस स्पेसिफिक डिस्कशन है वो अगले हमारे क्लासेस में है पीरियडिक पे। तो एनाटॉमी के सर डेली रिक्वायरमेंट ठीक बताइए सर। उसने 110 5 और 1 to 2 ml पर केजी के लिहाज से। हाँ जी, वो 4 to 1 वाला फार्मूला यूज होता है और ओके सर, उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल लेते हैं। बाकी जो बोलस है एट वन टाइम जो है वो इंक्रीमेंटल आप देते हैं 10 ml पर केजी, जो जहांगीर बता रहा था 30 ml पर केजी तक जाया जा सकता है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं अगर उसकी जो है ना रीनल फंक्शन अच्छा है, ओवरलोड का कोई इशू नहीं है या सीवियरली डिहाइड्रेटेड बेबी है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, कोमॉर्बिड कंडीशन को सामने रख के आपने चलना होता है, क्योंकि फ्लूइड जो है रिप्लेस वो हमेशा से जो है इन आउटपुट के साथ ही बैलेंस होती है, उसके लॉसेस एंड आउटपुट की जो स्टेटस है कि अगर किडनी की कंडीशन अच्छी है, लॉसेस ज़्यादा हैं, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। इवन आप देखते हैं कि इंट्रा ऑपरेटिवली अगर पेशेंट ब्लीड कर जाता है या जो है ना वो थर्ड स्पेसिंग का इशू है, आपको अब्डोमेन खुला हुआ है, थोरेक्स खुला हुआ है, तो आप उससे ज़्यादा भी दे देते हैं, रैपिड भी दे देते हैं, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। तो इस पे लिखा हुआ है कि सर कौन सी मॉनिटरिंग और क्लिनिकल असेसमेंट करनी है, तो उस पे लिखा हुआ है सर यूरिया इलेक्ट्रोलाइट करना है, ग्लूकोज करना है, डेली वेट करना है, फ्लूइड इनटेक आउटपुट बैलेंस रखना है और इसका ऑनगोइंग मैसेज जो अभी आप बता रहे थे सर। हाँ जी, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट ना हमेशा आपने कैलकुलेट करनी होती है अपनी सिचुएशन को सामने रख के। अब उस पे मोस्ट जो सोफिस्टिकेटेड अप्रोच या डिबेट है वो ये है, उसको कहते हैं टारगेट ना गोल्ड डायरेक्टेड थेरेपी सर। हाँ जी, गोल डायरेक्टेड थेरेपी के आपने अपने गोल सेट कर लेने, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस गोल के अंदर जो है वो जो है ना वो पल्मोनरी वेज प्रेशर करते हैं। इवन के उस पे एको के तरह के थ्रू करते जाते हैं सर, उससे भी आगे होता है, नॉन इनवेसिव आप सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो है उसकी कोलैप्सिबिलिटी जो है उसकी रेशियो देख लेते हैं, और उसके बाद जो है आप जो है सीवीपी एक वीकर वेरिएबल है लेकिन उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो गोल आप अपने सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना इंक्रीमेंटली वो देते जाते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड उसका जवाब तो यही है, अदरवाइज जो आपका रफ फार्मूला 4 to 1 और ऑनगोइंग क्लास। यस सर, ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। ठीक है जी सर एंड में फिर वही करेंगे सर, एक तो सबको असाइनमेंट सबमिट करानी चाहिए, दूसरा फिर आप डांटते तो जरूरी है, क्लास में सबको कोऑपरेट करना चाहिए। डांट लड़ने गया लेकिन क्या करें सर, फिर मैं तो नहीं खुद ही ग्रुप में बैठ के क्लास में कह रहे थे उस दिन के हम तो सो जाते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है भाई। चलो कोई नहीं, सोए तो रहे, चलो इस एहसास में तो सोए रहे कि यार पेट की हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैडम फरजाना भी होती है सर, इनको भी चाहिए कि थोड़ा अपने अपने उस नॉलेज से है ना मैडम। चलो वो भाई आप लोग असल में बोलने का टाइम ही नहीं देते तो इसलिए सुनना ही बेहतर। मैं बोलने की कोशिश की, एक दो बार अनम्यूट किया, लेकिन बस डिस्कशन चल रही नहीं थी। मैडम आप बताया करें, मैडम आपका नॉलेज से फायदा होगा सर। जी मैडम। इसमें डॉक्टर फरजाना का तो एक्सपीरियंस भी काफी है इसमें, उन्होंने काफी किया हुआ है। तो नेक्स्ट भी देख लें इनकी, अगर कोई टॉपिक असाइनमेंट अच्छी लगे तो वो कर लें, और ओके सर, मैडम डिस्कस कर लेंगे सर। इनके सारा जो हमारा ग्रुप है उसमें 2-3 ऑप्शन है ना पार्टिसिपेट करने की। एक तो जैसे हम कमेंट्स दे रहे हैं वो भी दैट्स गुड, दूसरा उसका तो है कि आप प्रेजेंटेशन दे दें, और उसके अलावा आप केस सिनेरियो बना लें
पूरे ग्रुप में कोई भी सपोज करें अगला जो टॉपिक है हमारा उसके ऊपर आप अपने केस बना के लें। वो आप सर इसका बेहतर तरीका यही है कि फिर डिस्कशन के बाद एक केस डाल लिया करेंगे, सीनियर भी अपना आउटपुट दे दिया करें और केस भी डिस्कस कर लिया करेंगे सर। ये रखा ही हमने इसीलिए है ना कि एक जी सर, ठीक हो गया। बेसलाइन हमारा नॉलेज थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, उसके बाद केस आ जाए। आप ओके सर। तकरीबन हमारे पास 20-25 मिनट तक प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है, तो अगले हमारा जो है ना 35 मिनट 40 मिनट उसमें हम 2-3 केसेस डिस्कस कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल हमारे अगर कैंडिडेट भी लेके आ जाए केसेस तो उससे ज्यादा अच्छी डिबेट है। ओके सर, अच्छा हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। अगले वीक फिर जो है ना फिर वेडनेसडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमने शेयर किया हुआ ग्रुप में उसको देख लें और उसको करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।